इमोशंस कहते हैं कि लोगों को इट्स जूल ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, गहना है एक आदमी के चरित्र का। दैट इज ट्रू, बट मुझे ये लगता है दैट इमोशंस आर द रिस्पॉन्सेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। लाइक इफ़ यू आर एंग्री, कुछ साइकोलॉजिकल पेन है, कुछ फ्रस्ट्रेशन है जो आपको पोक कर रही है और आपके साइकोलॉजिकल वेलबींग और एक नॉर्मल स्टेट को अफेक्ट कर रही है। दैट्स वाई यू आर इरिटेटेड और दैट्स वाई यू आर एंग्री एट समथिंग। बट वहीं दूसरा जब आप देखें, इफ़ यू नीड लॉन्ग, इफ़ यू फील लॉन्गिंगनेस, इफ़ यू फील लस्ट दैट यू नीड समथिंग, इसका मतलब है कि कोई चीज़ की कमी या फिर किसी चीज़ की क्रेविंग हो रही है आपको। सो वट एवर दैट माइट बी, दैट यू सीक प्लेजर, यू आर अवॉइडिंग पेन, यू आर सैड, यू आर हैप्पी, ये सभी अलग अलग टाइप्स के इमोशंस हैं, including all those jealousy, the ambition of the feeling of ambition, and the feeling of blessed, the joy, the pain, the deepest root, the guilt, the shame, ये सभी एक इमोशंस हैं एंड ये पार्ट ऑफ योर ब्रेन सिस्टम में है। बट व्हेन यू हैव टू अचीव अ गोल, we have a goal that we want to achieve, you need to be disciplined. And to be a disciplined man, meaning it means that कि उस काम को, जो आपके गोल को लेके, जो काम आपके गोल को पूरा करवाएगी, उस काम को आपने करना है और उसी मोस्ट, जितना ज़रूरत है, द मोस्ट इफ़ेक्टिव वे में उसे करना है। और इसको करने के लिए आपको एक चाहिए, एक स्टेबल माइंड, जिसके जिसके टाइम आपके ब्रेन के सारे फैकल्टीज काम कर सके। नाउ व्हाट हैपेंस इफ द इमोशंस आर अनस्टेबल? कई सारे इमोशंस एक साथ अगर आपके साथ आ जाए तो ब्रेन विल बी बिजी कैटरिंग टू दोज इमोशंस। सो व्हाट विल हैपन कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल नॉट बी एबल टू गेट द वर्क डन। सो इमोशंस आर द jewel, but you don't have to wear the jewel all the time, because the man, it's not for everyone. It's not for the common man who wants to live their life just by eating, sleep, work, eat, sleep, work, like that. But अगर आपको कुछ बड़ा अचीव करना है, यू थिंक ये आपका अपना अपना एक डिसीजन हो सकता है कि मेरे को लाइफ में एक इस डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना है। इन दैट केस यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू not regulate your emotion, not control your emotion, just be aware of it। बट इतना उसे ट्रेन करें अपने माइंड को कि इमोशंस के आने के बाद भी यू आर जस्ट एट अ सरफेस लेवल अफेक्टेड बाय दोज। You know what to do and you will do it anyway. You know, the great men are not the ones who do things greatly or they are talented, but they know, if I'm talking about the emotional stability, that they know how the emotions can be variable and how how much the necessity is for a mind to be stable। तो भाई, अगर कैटर कर रहे हैं तो इमोशन कैटर करिए, बट जस्ट अवेयर होके। हर एक इमोशन को जा जा के उससे उससे इंजॉय नहीं करना है, उससे कंसिडर नहीं करना है। For example, if you're going through breakup or losses or some kind of ecstasy that you have achieved something, कुछ बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आ गया है, और तो वो उसमें इतना डूब नहीं जाना है कि आपने अपना मेंटल डायरेक्शन खो दिया है। और शायद इसी को गीता में कहा गया है स्थित प्रज्ञा, या फिर इसी को स्टोइसिज्म में कहा गया है, दैट स्टोइक माइंडसेट, that you are not being bothered by either the happy or the good feelings or the bad and the depressing feelings. So what I feel is that you don't have to be great or you don't have to be the godlike, because you are a godlike when you are so focused. First you decide your goal, करना क्या है मुझे, और once you have decided, you know what to do, then do it in a manner that will give the best output. And for this you require to be aware of your emotions and not to be affected by it. And how can you not be affected by it? Just by looking and just be aware that what kind of emotions you are having, and then just move on. And it will not happen just by watching this video. It will happen when like practice mindful meditation, when you practice yoga pranayam, where you train your mind to be focused on a one particular thing, in which
In meditation, what we do is we try to focus our mind on one thing, be it mantra or be it on ourselves, which is called the mindful meditation. Or some meditation techniques are like where you focus on the flame of the candle, and then that's called another kind of meditation. And another kind of meditation is where the people of Asian country, especially in India, what they do is वो रुद्राक्ष की माला जो होते हैं उसको जपते हैं basically. And these kind of different types of meditations are there, but the goal is to train your mind to be focused at one place. And why is this important to focus on this, focus mind on one place? Is this that your mind is the greatest tool. This is like a graphic card in the CPU, right? What does graphic cards do? It helps to play the graphics and it helps to create और एडिटिंग वगैरह में काम आता है. उसी तरीके से यहाँ पे मेमोरी प्लस इमेजिनेशन के साथ मिल के हमारा माइंड कैन इमेजिन द फ्यूचर, कैन इंटरप्रेट द पास्ट, and can give you the abstract imaginations to life. So you can have new things happening first in your mind which you can bring out, manifest in the world. तो माइंड का बहुत बड़ा रोल है ग्रेटनेस के पीछे. बट आज की दुनिया में जहाँ पे हम हर चीज़ को होते हुए देख रहे हैं, कोई बिलियनियर बन रहा है, कोई बिजनेसमैन कर रहा है, कोई अलग अलग स्किल सीख के पैसा कमा रहा है, कोई ट्रिप पे जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वैसे में हमें लगता है कि यार ये सब करना बहुत ईजी है और हमारा माइंड हर कुछ करना चाहता है. हमारे माइंड का 100% एनर्जी है तो वो हर जगह स्कैटर्ड है, और एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में स्कैटर्ड है, कई सारे प्लेसेस में स्कैटर्ड है. उस वजह से हम जनरली एग्जॉस्ट हो जाते हैं या फिर हमारा माइंड किसी एक जगह पर नहीं टिकता है. बट अगर हम अपने माइंड के सारे एनर्जी किसी एक चीज़ पे फोकस कर दें, एंड व्हाट वुड बी द बेस्ट रिजल्ट अगर उसको हम अपने गोल पे फोकस कर दें, कि हम अपने माइंड को बताएं कि गिव मी ऑल द पॉसिबिलिटी हाउ कैन आई गेट टू द गोल, गिव मी ऑल द पॉसिबिलिटी हाउ कैन आई बेटर माई चांसेस ऑफ गेटिंग टू द गोल. तो ये जब हो माइंड को लगाते हैं through meditation, through mindful awareness, through the practicing yoga and pranayam, तो फिर वो हमारा माइंड जब ट्रेन हो जाता है, देन वी आर ऑल्सो अवेयर अबाउट आवर इमोशंस, और जो कि इमोशन रेगुलेशन बहुत जरूरी है.